guys, welcome back in Engineer Sahil का ज्ञान and today's topic is edge linking and बाउंड्री डिटेक्शन। ओके, और इन दोनों को ही परफॉर्म करने के लिए होज ट्रांसफॉर्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले अपन ये दोनों चीज़ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, देन वी विल गो टू द होज ट्रांसफॉर्म। ओके, सो एज लिंकिंग क्या होती है एंड बाउंड्री डिटेक्शन, बेसिकली हमें बाउंड्री को डिटेक्ट करना है। ठीक है, मतलब जो भी कनेक्टेड पिक्सल्स है उनके थ्रू कोई ना कोई बाउंड्री बन रही है तो उसको डिटेक्ट करना है। So set of the pixel from the edge detecting algorithm seldom define a boundary completely because of the noise breaks in the boundary. So it means that कि set of the pixels मिलके connect होके आपस में एक boundary को complete कर रहे हैं because of noise and breaks in the boundaries. Therefore, the edge detecting algorithm are typically followed by the linking. There are the two types, local and global. So global we have already learned in previous videos. So focus on the local processing. In a locus processing, all the points that are similar are linked, forming a boundary of the pixel that share सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। सो हमें ऐसे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है जो एक बाउंड्री बना रही है पिक्सल्स की, साथ के साथ वहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ उन सब में होनी चाहिए। लाइक कलर हो सकता है, इंटेंसिटी हो सकती है, ब्राइटनेस हो सकती है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। नाउ फॉर परफॉर्मिंग एज लिंकिंग और बाउंड्री डिटेक्शन वी यूज़ द होज ट्रांसफॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम मार्किंग दिस द स्टार क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So let's understand first what is a host transform. So it is a technique which can be used to isolate features of the particular shape within the image. For finding out any shape or in the particular image, like we have an apple in a basket in a particular image, so finding out that particular shape, we use the host transform. Basically it is used to we can say it is used to connect the disjoint edge pixels. We use the host transform, like जितने भी पिक्सल्स है उन सबको आपस में कनेक्ट करके, ठीक है, जो भी डिसजॉइंट है उनको यूज़ करके कुछ ना कुछ बना रहा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ द रेगुलर कर्व सच एज द लाइन, सर्किल, एलिप्स हुए, लाइन हुई, सर्किल, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए होस्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि किसी भी नंबर प्लेट है कि गाड़ी की नंबर प्लेट है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, कोई वो फोटो में ब्लर आ रहा है, सो वी कैन यूज अ होज ट्रांसफॉर्म इन दैट टू फाइंड आउट यूजिंग द लाइन, सर्किल एंड एलिप्स। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है होज ट्रांसफॉर्म की? वी कैन से इट इज़ द टॉलरेंट ऑफ द गैप इन द फीचर बाउंड्री डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द इमेज नॉइज। ओके, सो कोई भी वेरिएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है होज ट्रांसफॉर्म देखने के लिए। तो इसका डेरिवेशन और वो मैथमेटिकल फॉर्म अपन देख लेते हैं। सो हियर वी गो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन, दिस इज द लाइन इक्वेशन। ओके, so we are going to convert this into the using the p and theta plane. So this will be like this will be look like this, x cos theta plus y sin theta, and if you show in that particular diagram, this will be look like this. And in other plane actually this is, you can say this is a Ho's space. The Ho's space is a space where that things are in the same line will be intersect with each other, like it is intersecting at here, so you can see in a Ho's space it is intersecting, but in this there is no intersection. No intersection if we talk about only this particular line, not this one. Okay, so it is used to connect the disjoint edge points, as I said to you earlier. Okay, so the Ho's transform approach is to find the point of the intersection in the curve. What is the main target of the Ho's transform is to find the points of the intersection in the curve, each of which correspond to the line in the Cartesian xy plane. So Cartesian xy plane is x cos theta plus y sin theta. In circle we know that this is the equation of circle. And now focus, this is important because we are going to describe about the steps for applying Ho's transform, you can say. First we will take the particular image, then we will find out the shape, or we will find out the image line equation. अब इस लाइन इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि लाइक ये इस तरफ चल जाए तो ये माइनस हो जाएगा एंड वाई इस तरह से हो जाएगा। और लाइन की अपन सिंपली अगर बताएं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, अपन को अगर इसका बनाए और इसका बनाने जाएंगे, दिस इज योर होज स्पेस,
उसके अंदर आपस में इंटरसेक्ट करती है और कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है अपनी एक्स और वाई, ठीक है। एंड फॉर सिमिलर एग्जांपल 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ए और बी, और आपका होज स्पेस में यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्ट कर जाते हैं आपस में, जिसमें पैरामीटर एम और सी है। तो पहला स्टेप है इमेज फाइंड आउट करो, उसके बाद लाइन इक्वेशन बनाओ, उसको इसमें कन्वर्ट करो, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना, ठीक है, सपोज कीजिए। एंड उसमें उसके बाद आपको होज स्पेस बनाना है इसका ये वाला। देन फाइनली होज स्पेस बनाने के बाद आपको फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा इन पैरामीटर स्पेस, ठीक है। तो फाइनली आपको लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। एंड आफ्टर that all these steps you will be perform that Gauss ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से आपका Gauss ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे सिंपली आपकी लाइन इक्वेशन है उसको इसमें कन्वर्ट किया, देन आपने डायग्राम बनाया, देन आपने Gauss स्पेस में वो चीज़ रिप्रेजेंट की, लाइक मैंने 2 पॉइंट के लेके कराए, एंड देन फाइनली उसको यूज करके आपको लोकल मैक्सिमा उसका फाइंड आउट कर देना है। बस इतना चाहिए Gauss ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Please share this video with your friends, and still any doubt you can ask me freely in comment box. Okay, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।